Hello and good evening. Welcome to the Scholar IS, your one-stop solution for the UPSC and State Civil Services examination. I'm Shekhar Chaudhary, your faculty for the UPSC and State Civil Service current affairs, and in today's lecture we will be dealing with the Geography and Environment section. So let's start our lecture. Dear students, in today's lecture we would be dealing with the current affairs of Geography and Environment. So over here, decline in forest, bird species, guilds due to land use, change in Western Himalayas. So this was the topic of one of the topic of the Hindu of Geography and Environment. So you see over here the altitude, the difference in the altitude shown with the increase in the height. The blue part is above 3500 meters, and subsequently towards the southern side there is less altitude, and the different colors. So over here you can see this area which is in Tibet is called Trans Himalayas. Then there are three series of Himalayas: Shivalik, Middle Himalayas and Himadri, right? So the topic discusses the western sector of the Himalayas, right? It is also called Punjab Himalayas. So Western Himalayas are also known as Punjab Himalayas. They are stretched across two Indian states and two territories, Union Territory, post the Jammu and Kashmir reorganization. So Uttarakhand, Himachal, Jammu Kashmir and Ladakh respectively. Land use change is considered to be one of the most leading drivers of global biodiversity loss. So you see that the global biodiversity is being lost due to the change in the landform. It means the forests are being cleared for agriculture, or agricultural land is being converted into commercial land for the housing purpose or for building roads, infrastructure and other things. Himalaya forest and their biodiversity are threatened by expanding forest modification, degradation and conversion to other land uses, and as well as climate change. So these are the some of the factors जिनकी वजह से हमारे जो हिमालय के फॉरेस्ट हैं और उनमें जो जैव विविधता है उस पर दुष्परिणाम पड़ रहा है. हिमालय के जो ओक फॉरेस्ट होते हैं, ओक मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स से थोड़ा ऊपर और मिडिल हिमालयाज में पाए जाने वाला एक वृक्ष है जो कि बांज का पेड़ भी कहलाया जाता है, और इसमें बहुत डाइवर्सिटी है, कॉम्प्लेक्स वेजिटेशन स्ट्रक्चर, एवरग्रीन नेचर है, स्पीश रिच फ्लोरा, डेंस लीफ लिटर, खूब पत्तियां गिरती हैं इसकी जमीन पे, मॉइस्ट माइक्रो क्लाइमेट, और ये मॉइस्ट माइक्रो क्लाइमेट बनाने में इसलिए मदद करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने में रेन को अवशोषित कर सकता है. तो ये वाटर रिचार्ज में भी बहुत मदद करता है. बहुत सारी पत्तियां होती हैं तो पानी को एकदम से नीचे नहीं जाने देता. याद रखिएगा, ओक का ट्री. हिमालय एंड देयर टेरिटोरियल इकोसिस्टम हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहां पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता देखने को मिलती है. The study shows that there is a significant avifaunal and gilt improvement due to land use change from natural forest to other land use. तो ऐसा देखने को मिला है पक्षियों की particularly, और जो पक्षी झुंड में उड़ते हैं उनकी क्या है, उनकी संख्याओं में कमी हुई है. ठीक है, और क्वांटिफाई, ये स्टडी ने क्वांटिफाई करने की कोशिश की है चेंज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक फील्ड स्टडीज, और लैंड रेंज में कैसे एक लैंड रेंज अगर फॉरेस्ट से कट जाता है तो उससे क्या चेंज हुआ है, ये सब देखने की कोशिश करी है. लाइटली यूज्ड फॉरेस्ट रिटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एविफोना, और हाउएवर अर्बनाइजेशन, अगर किसी फॉरेस्ट में जाके आप थोड़ा बहुत उसकी डंडी काट लेंगे या लकड़ी ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर अर्बनाइजेशन होगा, इंटेंसिव यूज होगा, और पाइन मोनोकल्चर का मतलब है कि अंग्रेजों ने क्या किया था, जब एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज हो रहा था हमारे देश में, तो अंग्रेजों ने यहाँ की नेटिव स्पीशीज जो हिमालय की थी, जैसे साल के वृक्ष थे, जैसे ओक के वृक्ष थे, बर्च के वृक्ष थे और देवदार के वृक्ष थे, इनको काट के पाइन चीड़ का पेड़ लगा दिया था, क्योंकि उसकी लकड़ी से वो रेलवे के जो स्लैब होते थे जो अब सीमेंट के बनते हैं वो बनाए जाते थे. तो इनसे बहुत कमी आई है पक्षियों की जनसंख्या में और उनकी बायोडाइवर्सिटी में. हैबिटेट गिल्ड्स आर ग्रुप ऑफ बर्ड्स स्पीशीज दैट हैव कॉमन हैबिटेट प्रेफरेंस, जो एक ही साथ एक ही जगह पर रहते हैं अपने घर बना के, ऐसे पक्षियों को हैबिटेट गिल्ड्स का ग्रुप कहा जाता है.
और कल्टीवेशन जो खेती का जो इम्पैक्ट है, इट्स नॉट सो सीवियर इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज रिसेंट बट क्रिएट्स हाईली ऑल्टर्ड बर्ड असेंबलीज ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। तो ब्रीडिंग सीजन में अगर आप कल्टीवेशन करेंगे वृक्ष को हटा के, तो उसमें दिक्कत ये होगी कि उन वृक्षों से क्या होने वाला है कि उनके ब्रीडिंग पे असर पड़ेगा, वो एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, स्पीशीज कंपोजिशन इज सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड बाय लैंड यूज change as well as modified oak forest categories showing much more similarity with natural oak than to pine urban and cultivation sites। तो जैसे जैसे नेचुरल ओक से आप पाइन की तरफ जाएंगे, जंगल में लगाएंगे, इससे भी बायोडाइवर्सिटी को हार्म हो रहा है। ठीक है, रिजल्ट शोड दैट देयर वाज अ लो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज इन मोनोकल्चर, जहां एक ही टाइप के वृक्ष होते हैं पूरे जंगल में, अलग अलग वृक्ष नहीं है, एक ही टाइप के वृक्ष हैं, वहां पर जो संख्या है, जैव विविधता है बर्ड्स की, वो क्या होती है, कम होती है। अर्बन साइड में, शहरी जगहों पे भी कम होती है। इन टर्म्स ऑफ अबेंडेंस, फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट पॉलिनेटर जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, इंसेक्टिवोर्स आर अफेक्टेड मोर बाय लैंड यूज चेंज एंड अदर हैबिटेट गिल्ड्स सच एज commensals, open country species, forest generalists which are able to survive in modified landscape। तो ऐसे जीव जंतु जो कि कीड़े मकोड़े खा जाते हैं या पॉलिनेटर होते हैं, जंगलों के, जो जंगल और शहरी दोनों या खुले वातावरण में नहीं रहते, केवल जंगल में रहते हैं, ऐसी स्पीशीज को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ये देख रहे हैं आप, 2 स्पीशीज हैं यहाँ, बहुत सुंदर सी 2 बर्ड्स हैं, रुफोस बेलीड वुडपेकर एंड ग्रेटर येलो नेप। ये रहा, ठीक है, ये और ये दोनों वुड पैकर हैं। ठीक है, ग्रेट, ये इंडिकेटर्स हैं फॉरेस्ट की क्वालिटी क्या है। ठीक है, ये डेंस कैनोपीड, जहां पर खूब ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं और खूब सारे छोटे बड़े मध्यम आकार के वृक्ष हैं, कैनोपी उनकी वृक्षों की ऊंची है। ठीक है, ऊंचे वृक्ष हैं और कैनोपी घनी है। ये जो ये होती है इनकी छत टाइप की, पत्तियों से जो बनती है ये कैनोपी, और डंडियों से जो बनती है इनकी ब्रांचेस से, ये अगर अच्छी है तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, टॉलर ट्रीज होगा, लार्जर ट्रीज होगा, तो ये वहां पर जाते हैं। तो हायर नंबर ऑफ वुड पैकर्स, ये दिखाता है कि रिचनेस ऑफ अदर बर्ड्स भी होता है, क्योंकि ये वुड पैकर क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली अपनी चोंच से गड्ढा कर देते हैं और उन गड्ढों में खुद भी रहते हैं, और जो ये छोड़ देते हैं गड्ढे, उनमें और बर्ड्स जाके रहती हैं। तो वुड पैकर्स मेक अ ट्रीज, वुडपेकर्स मेक ऑन ट्रीज, जो घर बनाते हैं, कैविटीज यूज्ड बाय अदर नंबर्स ऑफ बर्ड्स एज वेल। तो जहां पर ये होंगी, इसका मतलब वहां पर और बर्ड्स की भी संभावनाएं खूब होगी। ठीक है, तो ये था एक टॉपिक आज का। और दूसरा टॉपिक है 6 बायोडाइवर्सिटीज हॉटस्पॉट इन इंडिया। ठीक है, वैसे ऑफिशियल 4 हैं, पर इस आर्टिकल में और 2 की बात करी गई है, तो देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब है ऐसी जगह जहां बहुत ही जैव विविधता रहती है, एक्सट्रीमली रिच इन फ्लोरा और फौना, जानवर और जो जीव जंतु हैं, और साथ में जो पेड़ पौधे हैं उनमें क्या है, बहुत जैव विविधता है। सो थ्रेट है इन पे, सही बात है, क्योंकि जो ऑब्वियस रीजंस हैं, क्लाइमेट चेंज है, अर्बनाइजेशन है, लैंड यूज चेंज है, वनों का काटा जाना है, डिफॉरेस्टेशन, ये सब एक्टिविटीज की वजह से इन पे दुष्परिणाम पड़ता है। टू क्वालिफाई एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अब कोई भी चीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कब हो सकती है, 1500 वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक। तो एंडेमिक वो स्पीसीज होती हैं जो वहीं पे पाई जाएंगी और कहीं पे नहीं पाई जाएंगी, जैसे निकोबार पिजन है, अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है। ठीक है, तो वहां की एंडेमिक स्पीसीज है। तो 1500 से ज्यादा प्लांट ऐसे होने चाहिए जो वहीं पे पाए जाते हैं और कहीं पे नहीं पाए जाते। ठीक है, और ऐसे ही हाई परसेंटेज ऑफ होनी चाहिए आपकी वहां पर प्लांट लाइफ, जो कहीं और पे नहीं पाई जाती। इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, और इन अदर वर्ड इट मस्ट बी थ्रेटन्ड। अब इसका मतलब है 30% से कम ओरिजिनल वेजिटेशन हो गई है और खत्म हो गई ओरिजिनल वेजिटेशन, तो इसका जो बायोडाइवर्सिटी, वहाँ का जो यूनिकनेस है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन हटा के कुछ और तरीके की इन्विजिव स्पीशीज भी हो गई हूँ। The concept of hotspots was put forward by Norman Myers in 1988। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरी बार इसको कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने डिफाइन किया। अराउंड द वर्ल्ड 36 हॉटस्पॉट हैं और दे रिप्रेजेंट 2.4% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, जितना कि भारत का कुल एरिया है। इतना ही है भारत का एरिया, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो लगभग इतने ही एरिया पे ये हॉटस्पॉट्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। ठीक है, बट दे सपोर्ट मोर देन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्लांट्स स्पीशीज एज एंडेमिक। मतलब केवल 2.4% जगह पर ही 50% से ज्यादा ऐसे पेड़ हैं जो केवल वहीं पाए जाते हैं, ये एंडेमिक हैं,
इन जगहों पे पाए जाते हैं। स्पीशीज फाउंड नोवेल एल्स, और ऐसी स्पीशीज जो कहीं और नहीं पाई जाती 43% बर्ड, मैमल, रेप्टाइल और एम्फीबियन यहां पर क्या है, स्पीशीज ऐसी हैं जो एंडेमिक हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये अंडरपिन्स ऑल लाइफ ऑफ अर्थ। एक तो यहां पर खूब सारी लाइफ देखने को मिलती है, ठीक है, और मैप ऑफ हॉटस्पॉट्स ओवरलैप्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल विद द मैप ऑफ नेचुरल प्लेसेस दैट मोस्ट बेनिफिट पीपल। तो जहां पर हॉटस्पॉट हैं वही ऐसी जगह हैं, नेचुरल जगह है जहां पर मानवता को सबसे ज्यादा क्या मिलता है, फायदा मिलता है। इसका मतलब वहां से या तो ऐसी जड़ी बूटियां आती हैं या लकड़ी आती है, स्वच्छ हवा के लिए कामगार है वो, इस तरह के बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ये जो 2.4% एरिया है इसमें ये खासियत है। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देख लेंगे, ऑफिशियली इंडिया में 4 हॉटस्पॉट हैं। हिमालयन, ये रहा हिमालयन रीजन, इसके बाद इंडो बर्मा ये रीजन, और वेस्टर्न घाट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और सुंडालैंड, ठीक है, ये इंडोनेशिया मलेशिया की तरफ को सुंडालैंड जो है, सुंडा स्ट्रेट भी है वो। तो 4 हैं आपके, इनको याद रख लीजिएगा, 1 हिमालयन, 2, 3 और 4, ये याद रखेंगे आप। इसके अलावा अगर हिमालयाज की बात करूं मैं, दिस रीजन कंप्राइजेस भूटान, नॉर्थ ईस्ट और सदर्न सेंट्रल ईस्टर्न नेपाल है इसमें, और इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे पीक्स हैं माउंट एवरेस्ट और K2, और 163 एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वन हॉर्न राइनो की, एक सींग वाला गेंडा। पर्टिकुलरली आपको पता है ये काजीरंगा में खूब पाया जाता है, ठीक है, काजीरंगा में पाया जाता है, नेपाल में भी पाया जाता है, दुधवा नेशनल पार्क में भी पाया जाता है। एशियन वाटर बफलो, जंगली भैंस, वेस्टर्न टेरागोपैन और रेलिक ड्रैगन फ्लाई, ये तो सब आपने देखा होगा बचपन में, बहुत इससे खेलते भी थे बच्चे। अनदर इंपॉर्टेंट इंडेंजर्ड स्पीशीज फाउंड हियर इज रेलिक ड्रैगन फ्लाई, जो केवल कहां पर मिलती है, जापान में मिलती है। और इसके अलावा नामधापा की फ्लाइंग स्क्विरल और चियर पीसेंट, ठीक है। तो देखिए कुछ और स्पीशीज हैं जो यहां पर है, चियर पीसेंट, वेस्टर्न ट्रैपोगैन, हिमालयन क्वेल, हिमालयन वल्चर, वाइल्ड बेलेड हिरॉन, ये भी एक क्या है आपका वल्चर की प्रजाति है। मैमल्स, एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स, स्लॉथ बियर्स, स्नो लेपर्ड, ब्लैक बियर, ब्लू शीप, वाइल्ड वाटर बफलो, ये है हिमालय में पाए जाने वाले जीव जंतु। नामधापा फ्लाइंग स्क्विरल, ठीक है, और ये एक्सटिंक्ट होने वाली है, ये खात्मे के कगार पे है। अब हम बात करें व्हाइट अर्ल्ड नाइट हेरॉन, ठीक है, ये एक पक्षी है। ऑरेंज नेक्ड पैट्रिज, लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स इंक्लूडिंग द व्हाइट eared नाइट हेरॉन और ग्रे क्राउड क्रॉशियस ऑरेंज नेक्ड पैट्रिज आर ऑल्सो फाइंड। तो अलग अलग प्रजातियां हैं, ठीक है। अब इंडो बर्मा रीजन की अगर मैं बात करूं तो ये काफी बड़ा है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, पीडीआर, और इसके इंक्लूड गंगेटिक प्लेन्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के पार्ट, इतना बड़े वृहद क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसमें लार्ज एंटर्ड मुनस्टैक, ठीक है, इसके अलावा एक तरीके का एनामाइट मुनस्टैक, ग्रे स्किन डाउफ, लीफ डियर, साउला, एनामाइट स्ट्रिप रैबिट, ठीक है, अलग अलग तरीके के क्या हैं सींगों वाले ये जानवर मिलते हैं। फ्रेश वाटर टर्टल एंडेमिक है, यहां पर जो फ्रेश वाटर मीठे पानी में कछुए रहते हैं तालाब वालाब में, वो यहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं, इंडो बर्मा रीजन में, ठीक है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हैज डिक्लेयर्ड वेस्टर्न घाट्स एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, ये भी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। अब हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं। मोस्ट स्पीशीज फाउंड इन द वर्ल्ड सच एज ब्लैक पेपर, कार्डेमम आर ऑल बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। तो जितनी भी काली मिर्च है या कार्डेमम है, ये ऐसा माना जाता है पूरी दुनिया में जो गई है वेस्टर्न घाट से ही गई हैं। और मोस्ट ऑफ द स्पीशीज हाउएवर प्रेजेंट इन द अगस्थमलाई हिल्स सिचुएटेड इन द एक्सट्रीम साउथ। तो ज्यादातर कार्डेमन और ब्लैक पेपर की स्पीशीज हैं यहां पाई जाती हैं अगस्थमलाई हिल्स, ठीक है। दे आर ऑल्सो होम टू वेरियस काइंड ऑफ एनिमल, फॉर एन एग्जाम्पल टाइगर्स, प्लैंथर्ड, जैसे यहां पर आपको साइलेंट वैली मिल जाएगा, ठीक है, और आपको और भी लेपर्ड, ब्लैक पैंथर्स के जंगल मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको कर्नाटका में आपको बांदीपुर मिल जाएगा जहां पर टाइगर रिजर्व भी है। सदर्न फॉरेस्ट एबोरियल जानवर रहते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, ठीक है। लाइन टेल्ड मकाओ, ये लाइन टेल्ड मकाओ बहुत क्या है, एक ऐसी स्थिति में है इस टाइप का बंदर जो कि एक्सटिंक्ट हो सकता है। और पिग नोज्ड पर्पल फ्रॉग भी यहां देखने को मिल सकता है, मॉनसून में ये ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और देखिए कितना बड़ा फ्लावर है, ये सुंडालैंड में है।
This region lies in Southeast Asia, includes Thailand, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, मलेशिया और इंडिया। ठीक, तो हमें अपने इंडिया से मतलब है निकोबार आइलैंड, ये ध्यान रखेंगे। निकोबार आइलैंड वर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व इन 2013 बाय यूनाइटेड नेशंस। सुंडरलैंड इज होम टू वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर, ये इंपॉर्टेंट है, रेफलेसिया, अ पैरासाइट 1 मीटर अक्रॉस, इतना बड़ा है, पैरासाइट है, वैसे औरों पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। द हॉटस्पॉट इज होम टू आइकनिक स्पीशीज लाइक ओरेंगेटून्स, ये बंदर होते हैं, पिग टेल्ड लंगूर, जावन एंड सुमात्रन राइनो, ये इंडिया वन हॉर्न राइनो से अलग हैं, ध्यान रखिएगा, आसाम वालों से डिफरेंट हैं, दे आर डिफरेंट। प्रोबॉस्किस मोंकीज आर फाइंड इन बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो की तरफ है, जो आपका इंडोनेशिया मलेशिया से आगे बोर्नियो एक आइलैंड पड़ेगा, पपुआ न्यू गिनी के साथ ही है ये। ठीक है, सुंदरबंस की अगर मैं बात करूं तो 104 आइलैंड है इसमें, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ये बनाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड के लार्जेस्ट, ये याद रखने का। सुंदरी नाम के वृक्ष से इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, होम टू रॉयल बंगाल टाइगर है, ये देखिए। और यहाँ के टाइगर क्या है, पानी में बहुत अच्छी तरह तैरना सीख गए हैं, इनके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं इनके बारे में। एस्चुरिन क्रोकोडाइल, गैंगेटिक डॉल्फिन यहाँ पर मिलती हैं। और राइजिंग सी लेवल की वजह से इसमें क्या है, नुकसान की स्थिति देखने को मिल रही है और ये डूब रहे हैं। तेराई द्वार सवाना, तराई का इलाका कौन सा है, तराई का इलाका शिवालिक के नीचे नीचे जो इलाका है वो तराई का इलाका है। ठीक है, और यहाँ पर सवाना मतलब ग्रासलैंड की बात हो रही है। और हिमालय के आसपास ये इलाका है, 25 किलोमीटर जो शिवालिक के बेस से होता है लगभग। आपने पढ़ा भी होगा कि शिवालिक के तुरंत बाद आते हैं आपके भाबर का इलाका, और तुरंत उसके बाद तराई का इलाका होता है जहां पर काफी मॉइस्ट होता है और यहां पर पानी भी काफी ऊपर होता है। इट हार्बर्स वर्ल्ड टॉलेस्ट ग्रासेस, ठीक है, जो अब थ्रेटेंड हो गई हैं, रेयर हो गई हैं। एलिफेंट ग्रास, वन हॉर्न राइनो इनमें छुपा रहता है। ठीक है, और इन ग्रासेस में एशियाटिक एलिफेंट और स्लॉथ बियर, ये स्लॉथ बियर है, ये छुपे रहते हैं इन ग्रासेस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप you all have liked this lecture, and if you have liked this lecture, please go and like our lecture on YouTube, and please subscribe our channel, do comment, and also please download our app, that is Scholar IAS, from Play Store. At the same time, you will largely benefit if you would be going and visiting our website, that is www.scholars.com. That is all I have to say in today's lecture. Thank you for attending the lecture. We will meet soon. Thank you.